السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہے، ہماری امن کی خواہش کا مثبت جواب نہیں دیا گیا، اس وقت تعلقات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، خطے میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ ہر پاکستانی کی حفاظت اور سلامتی اہم ہے، اس پر کسی سمجھوتے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، دشمن کی چالوں کے باوجود دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں، مضبوط قوم ہوتے ہوئے امن اور استحکام کے لیے ہم نے بہت سی آزمائشوں کو برداشت کیا، عوام کے تعاون سے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، نوجوان نسل کو ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے سے محفوظ رکھنا دانشوروں اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ محمد نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلوں کی بحالی کی درخواست منظور کر لی، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے، درخواست گزار نے خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپیلوں کی بحالی کے بعد شواہد کا جائزہ لے کر موقف پیش کریں گے پروسیکیوٹر جنرل نیب کے دلائل۔ نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی سیاہ دور میں لگنے والے دھبے دھونے کی طرف قدم ہے، حالات و واقعات اور ناقابل تردید شواہد ثابت کر چکے ہیں کہ کیسے نواز شریف کو سزا دی گئی، انشاءاللہ فتح انصاف کی ہوگی، ترازو کے پلڑے برابر ہونے سے ہی پاکستان بحرانوں سے نکلے گا، صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور اہم فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد، خصوصی عدالت کو شفاف ٹرائل کا حق دینے کی ہدایت، چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈائریکشن کے ساتھ درخواست نمٹا دی۔ الیکشن کمیشن کے انتخابات ملتوی ہونے کے تاثر کی پرزور تردید، الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، تمام تیاریاں مکمل ہیں، حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا، اعتراضات دائر کرنے کا مرحلہ کل مکمل ہونے کے بعد ان پر سماعت شروع ہوگی، 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع کی جائے گی، ترجمان الیکشن کمیشن۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن میں 5 دن باقی، 1 نومبر کے بعد بے دخلی کی پالیسی پر عمل ہوگا، تمام انتظامات اور تیاریاں مکمل، مختلف شہروں میں ہولڈنگ سینٹرز قائم، کسی کو غیر قانونی نہیں چھوڑا جائے گا، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو کرائے پر گھر دینے اور سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، قانونی دستاویز رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی۔ بے لگام صہیونی فوج کی سفاکیت جاری، غزہ پر شدید بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 482 شہادتیں، شہداء کی مجموعی تعداد 7082 ہو گئی، 3000 بچے، 1709 خواتین اور 397 بزرگ شامل، صہیونی فوج کا فلسطینیوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا منصوبہ بے نقاب، اسرائیل کو دفاع کا حق ہونے سے متعلق سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد ناکامی سے دوچار، روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، غزہ میں 45% رہائشی مکانات تباہ، 29 تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا، 50 ایمبولینسز پر بمباری ہوئی، 101 امدادی کارکن شہید ہوئے، صہیونی فوج کا شمالی غزہ میں 24 ہسپتالوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے انکیوبیٹرز میں نوزائیدہ بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں، صہیونی فوج کے جنگی جرائم روکنے میں عالمی برادری تاحال ناکام۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے امن کو لاحق خطرات بڑھنے لگے، صہیونی فوج کے جنوبی لبنان پر بمباری،
اسرائیل نے ایران کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو خوفناک نتائج نکلیں گے، کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی۔ اسرائیلی جارحیت بند نہ ہوئی تو جنگ مشرق وسطی سے باہر پھیل سکتی ہے، صدر ولادیمیر پوتن۔ صورتحال پر غور کے لیے حماس کے وفد کا روس کا دورہ۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ثابت، قطر کی عدالت کا بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کے لیے سزائے موت کا حکم۔ بھارتی وزارت خارجہ کی تصدیق، ان اہلکاروں کو 2022 میں جیل بھیجا گیا۔ بھارتی ایجنسیاں مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے 76 سال، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے۔ احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ خطے کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، عالمی برادری کو اپنی خاموشی توڑنا ہوگی۔ معاون خصوصی مشال ملک۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، کپواڑہ میں 5 نوجوان شہید کر دیے۔ یوم سیاہ پر کل پوری وادی میں ہڑتال ہوگی، آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں۔ روس کے ساتھ تیل خریداری کا کمرشل معاہدہ ہو چکا، سالانہ 90 لاکھ میٹرک ٹن تیل درآمد ہوگا۔ روسی خام تیل مارکیٹ سے 10 سے $15 فی بیرل سستا پڑے گا۔ پاور سیکٹر میں گردشی قرضے کے ساتھ نقصانات کو ختم کرنا ہدف ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فائدہ امیر طبقے کو ہوا، وزیر توانائی محمد علی۔ لاہور علم، تہذیب اور ثقافت کا مرکز لورے فیسٹیول کے انعقاد کی تیاریاں، ثقافتی رنگ بکھیرنے کے ساتھ میوزیکل کانسرٹ اور بچوں کے پروگرام بھی ایونٹ کا حصہ ہوں گے۔ 16 روزہ فیسٹیول 28 اکتوبر سے 12 نومبر تک جاری رہے گا۔ اللہ کے خاص کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ چین کے شہر ہانگ جو میں ایشین پیرا گیمز، پاکستان کے حیدر علی نے ڈسک تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ 51.23 میٹر تھرو کی وزیر اعظم کی حیدر علی کو مبارکباد۔ حیدر علی کا گولڈ میڈل پوری قوم کے لیے انتہائی فخر کا لمحہ ہے۔ انوار الحق کاکڑ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ خاندان خوشحال پاکستان، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، بہتر تعلیم، بہتر پرورش، محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم بھارت کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ چین کے ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری نے خطے کی معاشی صورتحال کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تفصیل جانیے شاہ رخ شفیع کی رپورٹ میں۔ چین کے فونیکس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پڑوسیوں سے معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو یہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہے۔ Pakistan consistently for last many years, or probably more than a decade or two, has exhibited its intent for a peaceful neighborhood. Despite our continuous attempts and efforts, we are not being reciprocated in the same manner. The desire of peace on the other side seems to be an elusive idea.
मसला कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दरीना हल तलब मसला है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। The old issue of Kashmir, we feel if it is not resolved according to the aspirations of the Kashmiri people and in the framework of United Nations Security Council resolution, I think that first of all the international community needs to stop doing cherry picking. The conflicts, the violence, that has to be taken according to the moral positions and principles. एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने 10 साल पहले CPEC मंसूबा चीन के साथ शुरू किया था। पाकिस्तान मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार था जिसमें तवानाई के मसाइल सरे फहरिस्त थे। CPEC से मुल्क में रोजगार के नए मौके पैदा हुए और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। It intervenes and offers an opportunity to us to develop our infrastructure, to add to our energy sector, and all that was primarily an impetus to our economic growth. We are anticipating and focusing on the second phase of CPEC. It's a grand opportunity which probably once comes in centuries. निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेरा चीन का ये पहला दौरा है, इसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। इससे कबल मैंने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया, लेकिन बीजिंग पहुंचने के बाद इसकी तरक्की ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया है। चीन ने शानदार तरक्की और खुसूसी मेहनत से दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। एक सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। इस मसले से निपटने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर किरदार अदा करना होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल चालों के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा करने वाले नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि सिविल सोसाइटी इस बात को यकीनी बनाए कि हमारे अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे के बारे में आगाह रहे और इसका मुकाबला करें। शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया गया, जिनमें स्मगलिंग, बिजली चोरी, मनशियात का फैलाव, बॉर्डर कंट्रोल के इक़दामात और पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहम है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नतीजे में मईशत पर मुस्बत असरात समेत मईशत की बेहतरी के लिए किए गए मुतअद्दिद इक़दामात को भी उजागर किया। सिपह सलार का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम हैं जो अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों से गुजरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल शेख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने की। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर शाह ने अदालत को बताया कि उन्होंने अदालती अहकामात के मुताबिक रेफरेंसेस की बहाली और नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से नैब हुकाम से हिदायत ली हैं। नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन के तहत रेफरेंसेस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में होती है जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला ना सुनाया हो। अपील दायर होने के बाद अदालत ने इसका फैसला करना होता है और क्रिमिनल अपील फाइल होने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए। एहतसाब अदालत ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को सजा दी तो इनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें दायर हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदम पैरवी पर अपीलें खारिज की गईं और अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर दरख्वास्त देकर इन अपीलों को बहाल करवा सकते हैं। दरख्वास्त गुजार खुद को सरेंडर कर चुका है और नैब को इन अपीलों की बहाली पर कोई एतराज नहीं है। नैब चाहता है कि इन केसेस का फैसला कानून के मुताबिक मेरिट पर किया जाए। हम अपीलों की बहाली पर शवाहिद का जायजा लेने के बाद अदालत में मौक़िफ अपनाएंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि नैब सरेंडर कर रहा है। ये तासुर हकाइक के बिल्कुल बरक्स है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो कानून के ऐन मुताबिक है।
नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के फैसले ने सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक नैब ने इस केस में 3 वकील तब्दील किए और नैब को 12 मौके फराहम किए गए। ताहम अदालती फैसले के मुताबिक नैब इस केस में नवाज शरीफ का किरदार साबित करने में भी नाकाम रहा। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल अजीज़ी और एवनफील्ड मुकदमात में नाहक सजाओं के खिलाफ मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली नाइंसाफी के खात्मे की जानिब एक कदम है। अपने पैगाम में उन्होंने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ उनसे मोहब्बत करने वाले अवाम और कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि फतह इंसाफ की होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालत ने दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने के तासुर की पुरजोर तरदीद करते हुए कहा है कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि सदर मुमलिकत के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ये तासुर सामने आया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। इस सिलसिले में इदारा पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। तर्जुमान ने कहा कि हल्का बंदियों के पहले मरहले के बाद एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला भी कल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद एतराज़ात की समाअत शुरू होगी और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी कहते हैं मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की निशानदही कर ली गई है और उन्हें वापस भेजने का मंसूबा भी तैयार है। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील अमाद अवान के इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की अपने ममालिक वापसी का मैकेनिज्म बना दिया गया है। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कयाम करने वाले किसी शहरी को हरासा नहीं किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बगैर दस्तावेजात के मुल्क में रहने वाले अफराद रज़ाकाराना वापसी की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। जो सिटीजन्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक के और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका हमने एक प्लान बनाया था, रिपैट्रिएशन प्लान। उस प्लान को हमने हतमी शक्ल दे दी है। सूबाई हुकूमतें और इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो और जो हमारे स्पेशल एरियाज़ हैं जिसमें AJK और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर हमने सेंटर्स बना दिए हैं जिनको हमने होल्डिंग सेंटर्स का नाम दिया है। तो मेरी फिर एक दफ़ा ये अपील है उन लोगों से जो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है, वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं बजाय इसके कि हम सख्ती करें। वजीर दाखिला का कहना था कि जिन गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड बना रखे हैं उन पर अगले मरहले में कार्रवाई होगी। उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों को भी खबरदार किया कि वो डेड लाइन गुजरने पर गैर मुल्की अफराद की रिहाइश, कारोबार या लेन देन के मामले पर सहूलत कारी के नतीजे में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जितने भी इलीगल ID कार्ड्स बनाए गए थे, तो उस थेफ्ट में जो लोग सामने आएंगे, पूरी नादरा दिन रात उस पे काम कर रही है, उन लोगों को भी सजाएं दी जाएंगी। वो जो फैसिलिटेशन का काम करेंगे, इन इलीगल फॉरेनर्स को अपने पास रखेंगे, तो वो हमारे लॉ की वायलेशन है और उसके खिलाफ हुकूमत बड़ी सख्ती से निपटेगी। सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि ट्रांजिट वीजा पर कयाम करने वाले गैर मुल्कियों को हुकूमत हर किस्म की सहूलत देगी। उनका कहना था कि 1 नवंबर के बाद बगैर दस्तावेजात किसी को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसके लिए तमाम इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम इन बाशिंदों को 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। कस्टम हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी काफिलों की सूरत में बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। मजमूई तौर पर अब तक 72,000 अफगानों की वतन वापसी हो चुकी है।
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کو فلسطین کی صورتحال پر شدید تشویش ہے. غزہ کا محاصرہ فوری ختم کر کے خوراک اور ادویات اور ضروری اشیاء کی فراہمی ممکن بنائی جائے. امدادی کارکنان پر بمباری روک کر ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے. وزارت خارجہ میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. محاصرے کے باعث غزہ کے شہریوں کے لیے خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے. ترجمان نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی اب تک حل طلب ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل ناگزیر ہے. غزہ پر اسرائیل کے سفاکانہ حملے جاری ہیں. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ شب ان کی افواج نے شمالی غزہ میں زمینی کارروائی کرتے ہوئے ٹینکوں سے حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلیوں کی وحشیانہ بمباری میں مزید 482 فلسطینی شہید ہو گئے. فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ 20 دن سے جاری صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 7028 ہو گئی ہے، جس میں 3000 بچے شامل ہیں. اسرائیلی حملوں میں اب تک 17439 سے زائد افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں. شہداء میں خواتین اور بزرگ افراد شامل ہیں. غزہ میں الجزیرہ ٹی وی کے بیورو چیف وائل دہدوف کا پورا خاندان صہیونی حملوں میں شہید ہو گیا. فلسطینی علاقے خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 6 مکانات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مرنے والوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے. برطانوی نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے انکشاف کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کیمیائی ہتھیاروں اور اعصاب شکن گیسوں جیسے حملے کر سکتا ہے. ویب سائٹ نے خصوصی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ممکنہ طور پر غزہ میں تعمیر شدہ سرنگوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف گیسز کے استعمال کی تیاری شروع کر دی ہے. یہ کیمیائی حملہ سرپرائز حملے کا حصہ ہوگا. بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ممنوع ہے اور خصوصاً اعصاب پر اثر انداز ہونے والے کیمیائی ہتھیار اور گیسز پر پابندی عائد ہے. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو وحشیانہ قرار دیا ہے. صدارتی محل میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں. وہ مزید کتنے بچوں کو مرتا دیکھنا چاہتے ہیں. ترک صدر نے واضح کیا کہ کوئی بھی یہ توقع نہ رکھے کہ ترکی غزہ میں ہونے والے تشدد پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے گا. اسرائیلی حملے ظلم و بربریت اور قتل عام میں تبدیل ہو چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے کیونکہ غزہ میں بہایا جانے والا خون مسلمانوں کا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جنگ مشرق وسطی سے باہر بھی پھیل سکتی ہے. محصور علاقے میں بے گناہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مختلف عقائد کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ ہمارا بنیادی کام خون ریزی اور تشدد کو روکنا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی رہنماؤں کو فون کر کے آگاہ کیا ہے کہ اگر غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم بند نہ ہوئی تو اس سے وسیع تصادم کا خطرہ موجود ہے. روسی وزارت خارجہ کے مطابق صورتحال پر غور کے لیے حماس کا وفد روس کے دورے پر ہے. روس اور چین نے غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا. قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ عسکریت پسند گروپوں کو ہتھیاروں کی برآمد بند کرے. متحدہ عرب امارات نے بھی نفی میں، جبکہ 10 ارکان نے حق میں ووٹ دیا اور برازیل میں موزمبیق نے حصہ نہیں لیا. کونسل میں روس کی قرارداد پر بھی ووٹنگ کروائی گئی، جس میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. روس، چین، متحدہ عرب امارات اور گیمبون نے مسودے کے حق میں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے مخالفت میں ووٹ دیا. 9 ارکان نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا. ادھر مصر نے غزہ سے زخمیوں کی ممکنہ امداد کے تحت اسپتال اور خیمے لگا دیے ہیں. وال سٹریٹ جرنل کے مطابق مصر کی غزہ کے سرحد کے قریب 3 فیلڈ اسپتال اور ٹرائچ ٹینٹ قائم کیے ہیں. سرحد کے ساتھ بفر زون کے لیے اضافی حفاظتی حصار بھی قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ رفح اور شیخ زوید شہروں میں بھی خیمے لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں دفاعی معاملات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی کی صدارت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کا 6واں سینٹ اجلاس ہوا. صدر مملکت نے شعبہ طب میں یونیورسٹی کی خدمت اور مجموعی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعات تحقیق کے شعبے میں اپنی کارکردگی بڑھائیں. ملک کو بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور نرسز کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے خواتین ڈاکٹرز کی شعبہ صحت میں خدمات اور خواتین کو کام کی جگہ پر دوستانہ اور حراسیت سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ یونیورسٹی مستقبل میں نئے پی ایچ ڈی پروگرامز شروع کرنے جا رہی ہے. یونیورسٹی کے اجلاس میں ادارے کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی گئی.
निगरां वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि रूस के साथ तेल की खरीदारी का कमर्शियल मुआहदा हो चुका है, जिसके तहत सालाना 90 लाख मीट्रिक टन तेल दरामद करेंगे। रूसी खाम तेल मार्केट से 10 से 15 डॉलर फी बैरल सस्ता पड़ेगा। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग में उनका कहना था कि गैस की कीमतों में हालिया इजाफे से पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्ज नहीं बढ़ेगा। 57% गैस कनेक्शंस का टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से सबसे ज्यादा गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। निगरां वजीर तवानाई ने कहा कि किसानों पर बोझ न डालने के लिए फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 8 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 51,185 पर बंद हुआ। बाजार हिस्सेस में 36 करोड़ 40 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 92 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 139 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 196 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 20 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हुकूमती और अस्करी मुश्तरका काविशों की बदौलत मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। गुज़िश्ता चंद महीने में ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर 6 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जो 7 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है। सितंबर 2023 में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरूनी तरसीलात ज़र 6 अरब 75 करोड़ डॉलर से भी तजावुज़ कर गईं। माली साल 2023-24 के पहले 3 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 7 करोड़ 27 लाख डॉलर थी। हाल ही में चीनी सरमायाकारी के बाद कुल गैर मुल्की सरमायाकारी 12 करोड़ 63 लाख डॉलर तक जा पहुंची है। बैंक डिपॉजिट्स के खिलाफ बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम के बावजूद सितंबर 2023 में बैंकों के पास रखे गए डिपॉजिट्स 15.33% सालाना इजाफे के साथ 26.32 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो सितंबर 2022 में 22.82 ट्रिलियन रुपए थे। दूसरी जानिब अफरात ज़र 31.4% से कम होकर 26.4% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान कार्बन ट्रेडिंग के तहत हाल ही में सिंध की साहिली पट्टी में एक प्रोजेक्ट से 4 करोड़ डॉलर का सरमाया और 21,000 मुलाजमतें पैदा हुई, जिससे 49,000 की आबादी को रोजगार मिला। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर का 75वां यौम शहादत नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। नक्याल में शहीद मज़ार पर उनके खिराज अकीदत के लिए पुरवकार तकरीब का इन्नेकाद किया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तफसील जानेंगे राना शहजादुस्सलाम से। पाक फौज के बहादुर सपूत नायक सैफ अली जंजुआ ने कश्मीर में वतन की हिफाजत करते हुए 26 अक्टूबर 1948 को जाम शहादत नोश किया। नक्याल में उनके मज़ार पर यौम शहादत की मुनासबत से पुरवकार तकरीब हुई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को सलामी पेश की। तकरीब में आला अस्करी और सिविलियन हुकाम समेत शहीद के अजीज़ो कारब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिन का आगाज मसाजिद में नायक सैफ अली जंजुआ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा इकराम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद धरती का बहादुर बेटा था, जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने अपने पैगामात में कहा कि बिलाशुबा नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को 1948 की कश्मीर जंग के दौरान भारतीय फौज के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा पेश करने पर हलाल कश्मीर के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। हलाल कश्मीर को निशान हैदर के आला तरीन अस्करी एजाज के मुसावी करार दिया जाता है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने बरे-सग़ीर की तक़सीम के वक्त तमाम तर बैनुल-अक़वामी उसूलों को रौंदते हुए श्रीनगर में अपनी फ़ौजें उतार दी और जन्नत नज़ीर वादी पर अपना गैर कानूनी और गैर अखलाकी तसल्लुत जमा लिया। कश्मीरी अवाम हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। रिपोर्ट तैयार की है अदील अहमद खान ने। 1947 में जब बर्रे सगीर तकसीम हो रहा था तो इस वक्त कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान थी। रियासत का मजहबी, जोग्राफियाई, नजरियाती और माशी एतबार से पाकिस्तान के साथ इल्हाक फितरी था।
मुसलमानों की अक्सरियत बबांगे दहल पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर चुकी थी। खित्ते से जब बरतानवी साम्राज्य का सूरज गरूब हो रहा था, तब भारत एक नए साम्राज्य का रूप धार कर सामने आया और 27 अक्टूबर 1947 में अपनी फौजें श्रीनगर में उतारी। उस वक्त भी जब भारत की फ़ौज श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी तो उस वक्त भी कश्मीरियों में एक मज़ाहमत शुरू हुई, उन्होंने मुजाहरे शुरू किए। वो निहत्ते थे, उनके पास असला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत की फ़ौज की आमद के ख़िलाफ़ अपने भरपूर रद्द अमल का मुजाहरा किया। वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ मिली भगत से बाउंड्री कमीशन अवार्ड में तब्दीली करवाकर मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर को भारत के हवाले करके इसे कश्मीर तक जमीनी रसाई फराहम कर दी थी। 7 दहाइयां बीत चुकी हैं, मगर मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय फौज के जुल्म इस्तबदाद के स्याह बादलों की जद में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी अपने पैदाइशी हक के खुद इरादियत के लिए बरसरे पैकार हैं। यहाँ ताकत का हर हरबा आजमाया जा रहा है। जन्नत नजीर वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर साल कश्मीरी अवाम 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और रियासत के दोनों अतराफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जाता है। कश्मीरी अवाम अक़वाम आलम बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा से ये सवाल करते हैं कि 70 बरस गुजरने के बावजूद कश्मीरियों को उनके पैदाइशी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत से महरूम क्यों रखा गया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म की खुसूसी मुशीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक ने कहा है कि खत्ते के अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आलमी बिरादरी को अपनी खामोशी तोड़ना होगी। तफसील यासिर हुसैन से। इस्लामाबाद में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ योम सयाह के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म की खुसूसी मुशीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरी अवाम 1947 से भारतीय जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। मिशाल मलिक ने कहा कि दुनिया को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जहाँ हमारी पूरी तहरीक को लीडरलेस किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं। कश्मीरी कौम ने अमन की बात की, पुरअमन हल की बात की, एक सियासी हल की, हक के खुद इरादियत की बात की और सोल्यूशन तो पड़ी है यूनाइटेड नेशंस के पास। जो हाल वहाँ पे गाज़ा के अंदर किया जा रहा है, जो कश्मीरियों के साथ 5 अगस्त के बाद बाकायदा एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड किया जा रहा है, जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं सो कॉल्ड, उनकी तरफ से कोई प्रैक्टिकल स्टेप सामने नहीं आए। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद सफ़ी, महमूद अहमद सागर, मोहम्मद फारूक रहमानी और शेख अब्दुल मतीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अमली जामा पहनाया जाए। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीरी कभी भी अपने मौक़िफ़ पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में मजीद 5 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। फौजियों ने इन नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट और सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद शाह और नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने पैगामात में कश्मीरियों से कहा है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कल यौम स्याह मनाकर दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दें कि वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, मोहम्मद यूसुफ नक्काश, जावेद अहमद मीर, मौलाना निसार अहमद और मोहम्मद इकबाल मीर ने श्रीनगर में अपने बयानात में आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से पोस्टर चिस्पा किए गए हैं, जिनमें लोगों से कल की हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने इल्तिजा की है कि मुफ्ती ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मोदी हुकूमत उनकी जमात पर पीपल्स अलायंस फॉर गुप्का डिक्लेरेशन से निकलने के लिए शदीद दबाव डाल रही है, जो 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए कायम किया गया था। दूसरे ममालिक में तखरीबकारी और रेशा दवानियाँ भारतीय हुक्मरानों की हमेशा से रविश रही हैं। अब कतर की अदालत ने ज़ेरे हिरासत 8 भारतीय जासूसों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिशें आलमी सतह पर मुसलसल भारत के लिए हजीमत का बायस बन रही हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद।
دوسرے ممالک میں ریشہ دوانیوں کے لیے مشہور بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا ہے۔ قطر میں گزشتہ برس گرفتار کیے گئے 8 بھارتی جاسوسوں کو قطر کی عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے یہ اہلکارے داہر گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنسی سروسز نامی کمپنی کی آڑ میں اسرائیل کے لیے قطر کی جدید ترین آبدوز کی جاسوسی کر رہے تھے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں ان جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ بھارتی جاسوس فوجی اہلکاروں میں کیپٹن اوتیج سنگھ، بریندر کمار ورما، سوربھ وشس، کمانڈر امت نگپال، پریندر تیواڑی، سگناکر پکالا، سنجیو گپتا اور ملاح راجیش شامل ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسرے ملکوں میں تخریب کاری اور جاسوسی بھارتی حکمرانوں کا وتیرہ بن چکی ہے۔ ہندوستان کی بیرون ممالک دہشت گردانہ کارروائیاں پہلے بھی دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں۔ بھارت کے جاسوسی کے نیٹ ورکس پر دنیا بھر میں ایک عرصے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ را کے ایجنٹوں کے ہاتھوں کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر اور برطانیہ میں اوتار سنگھ کھنڈا کی ٹارگٹ کلنگ پر سکھ برادری تاحال سراپا احتجاج ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہندوستانی حاضر سروس نیول آفیسر کلبھوشن یادو 2016 میں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور معروف جریدے نے بھارت میں صحافتی آزادی کی سنگین صورتحال پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ DW کے مطابق بھارت میں صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا استعمال تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پولیس اب تک 25 سے زائد صحافیوں سے پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ نیوز کلک کے بانی بریپر کائست اور امت چکرورتی کو بھارتی پولیس نے دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر چکا ہے۔ فری سپیچ کلیکٹیو کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے اب تک 16 صحافیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھیجا جا چکا ہے۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلی عباس جیلانی نے بکش میں SCO کی سربراہان حکومت کونسل کے 22ویں اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان SCO میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کا 22واں اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس سال علاقائی خوشحالی کے لیے ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی پر کانفرنس کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ سی پیک شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو علاقائی روابط کے لیے مستقبل میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتا ہے۔ Pakistan is committed to working for a sustainable and nature positive world that we owe to our future generations. Pakistan consider it a matter of honor and trust to be chair of this important forum. It will be our endeavor during the period of our chair to accommodate all forward-looking initiatives that promote development of the SCO region. Pakistan looks forward to an active and positive participation of all member states to realize our regional potential. نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں SCO افغانستان رابطہ گروپ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ Sustainable economic development cannot be guaranteed without durable peace and security, ensuring stability in Afghanistan. Reviving the contact group can foster dialogue and meaningfully assist the Afghan authorities in overcoming their economic challenges and building their counter-terrorism capacities. نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنی صدارت کے دوران ہنگامی صورتحال سے بچاؤ اور رد عمل سے متعلق اجلاس کی میزبانی اور غربت کے خاتمے پر خصوصی ورکنگ گروپ کے افتتاحی اجلاس کی میزبانی کرنے کی تجویز رکھتا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جمہوریہ کوریا اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 40 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، غیر ملکی سفارتکاروں سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان جمہوریہ کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوریا نے اپنی دور اندیش اور پرعزم قیادت کی بدولت اقتصادی اور صنعتی شعبوں میں ترقی کے اہداف حاصل کیے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ پاکستان جنوبی کوریا کو اقتصادی اور تکنیکی ترقی کی تلاش میں ایک قابل قدر اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ تقریب میں پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے 40 سالہ سفارتی تعلقات کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان برونائی مشترکہ دفاعی ورکنگ کمیٹی کا 6واں اجلاس وزارت دفاع راولپنڈی میں ہوا۔ سیکریٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے پاکستانی وفد کی قیادت کی، جبکہ برونائی دارالسلام کے وفد کی قیادت سیکریٹری دفاع ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل داتو سری پہلوان حاجی علی زوپندی نے کی۔ 3 روزہ اجلاس میں 2 طرفہ دفاعی تعاون، سلامتی، انسداد دہشت گردی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے سلامتی سے متعلق شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔
पाकिस्तान ने इसराइल की वहशियाना बमबारी को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो गजा की नाकाबंदी ख़त्म कराने और मजलूम फ़लस्तीनियों तक इमदादी सामान की रसाई के लिए फौरी किरदार अदा करें। ये मुतालबा अफ्रीकी मुल्क अंगोला में होने वाले बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के इजलास में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की सरबराही करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार करने पर अमरीका और मगरबी मुल्कों के दोहरे मयार को तनकीद का निशाना बनाया। गाज़ा में जारी इसराइल के वहशियाना मज़ालिम और हमलों के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गईं, जिसकी तफसील बताएंगी नौरीन आसिफ अपनी रिपोर्ट में। कराची के इलाके ताहिर विला चौरंगी पर खवातीन मार्च से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि खवातीन मार्च में शामिल शुरका इसराइल की जानिब से जारी दहशतगर्दी, मजलूम और निहत्ते फलस्तीनी बच्चों, माओं और बहनों पर बमबारी करने के खिलाफ अहले गजा और फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली जुल्म के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से अल कुद्स मार्च मुनक्किद किया गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मार्च के शुरका से खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक के अलमबरदारों को इसराइल में मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने और उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम करने का सख्त और फौरी नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल बमबारी से गजा का इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। फलस्तीन मार्च से दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इससे पहले जामिया कराची में मुनक्किद मार्च में तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा, समाजी और इंसानी हकूक तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम फलस्तीन अमन वॉक हुई। वॉक में स्कूल और कॉलेजेस की तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। वॉक खातून पाकिस्तान डिग्री कॉलेज से शुरू होकर राना लियाकत अली खान डिग्री कॉलेज पर इख्तिताम पजीर हुई। तालिबात ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीन का तवील झंडा भी उठा रखा था। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शाह खुरासा इमाम बारगाह में शोहदा फलस्तीन की याद में शमع रोशन की गयी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। इससे पहले शहीद और मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआ की गयी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर से रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मुलाकात में पेशा वाराना उमूर और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स और एयर डिफेंस के सरबराह मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर मोहम्मद अल अलावी की क़यादत में वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात की। इस मुलाकात में आलमी सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू हुई। एयर चीफ ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क़ इंडस शील्ड में मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ज़ाई दस्ते की शिरकत को सराहते हुए दोनों ममालिक के माबैन बेमिसाल बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई शानदार पेशरफ्त और पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों की पेशा वराना महारत को सराहा। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फ़ज़ाइया के एक चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सूबे को दरपेश माली बहरान और रेवेन्यू बढ़ाने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को ज़म अज़ला के लिए फ़ंड्स की अदम इजरा से होने वाली मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वफाक सूबे की माली मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की माली मुश्किलात से मुताल्लिक इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जच्चा बच्चा की सेहत, पोलियो और मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि आलमी इदारे सेहत के ताउन से मुल्क भर में 430 बुनियादी मराकज़ सेहत की बहाली का मनसूबा तश्कील दिया गया है। पाक US डायलॉग में टेक्निकल ग्रुप की तजावीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में सेहत के मुख्तलिफ शोबों में भरपूर ताउन के अज़्म का इजहार किया।
हबीब बैंक लिमिटेड और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के माबैन कराची में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि हुकूमत IT इंडस्ट्री के फ़रोग और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की IT की इस्तेदाद को आलमी सतह पर दुरुस्त तौर पर मार्केट करने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बैंकिंग और IT इंडस्ट्री का ये इश्तराक टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम संग मील साबित होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में महफूज फैसला सुना दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान उकाब देने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ के आला सतह वफ़द ने इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। PTI ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुश अमन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वफ़द में साबिक स्पीकर असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर शामिल थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने IPP को शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। IPP ने अपनी दरख्वास्त में शाहीन का निशान मांग रखा था। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि IPP शाहीन की तरह बुलंद सोच, बुलंद अमल और बुलंद परवरी वाली जमात है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान इस शाहीन के दाव पर जिनसे IPP परवाज करेगी। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर शहर के इल्मी, तहजीबी और सकाफती रंगों को उजागर करने के लिए 16 रोज़ा सकाफती मेला हफ्ते से शुरू हो रहा है, जिसकी तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। शहरों में शहर लाहौर अपनी इल्म, दोस्ती, रंगारंग सकाफत, कदीम रवायात और जिंदा दिली के बाइस दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। इसकी गुनगुनाती फिजाएं, पुर रौनक बाजार, सरसब शदाब बाग और इल्म और अदब के शाहकार बैठ के हर आने वाले को अपने शहर में ले लेती हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा था, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। हुकूमत पंजाब की तरफ से लाहौर लाहौर के उन्वान से रंगारंग फेस्टिवल का मकसद इस तारीखी शहर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करना है। फनकार थिएटर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करेंगे, जिनमें लोक दास्तानें और कहानियों की अक्कासी की जाएगी। मौसीकी के दिलदादा अफराद के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम और बच्चों के लिए इवेंट्स भी रखे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल लाहौर सेलिब्रेट कर रही है और ये एक नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का एक फेस्टिवल है, जिसके जरिए हम पंजाब के कल्चर को और लाहौर के कल्चर को उजागर करेंगे। फेस्टिवल में लाहौर के अंदरून शहर का तस्करा ना हो, ये कैसे मुमकिन है। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी इस हवाले से खुसूसी सेगमेंट पेश करेगी, जबकि PHA, लाहौर आर्ट काउंसिल और कल्चर कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ इदारे लाहौर के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमाया करेंगे। हमारा अपने यहाँ पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहा है, उसमें हमारी बुक फेयर है, एग्जीबिशन है, बच्चों के लिए मैजिक शोज हैं, म्यूजिकल कंसर्ट्स हैं। ये 16 रोज़ा फेस्टिवल पंजाब की तहजीब और सकाफत, ज़बान की मिठास, इल्म और अदब और सकाफती इक़दार को नौजवान नस्ल के सामने पेश करने का जरिया होगी। ये खुसूसी फेस्टिवल 12 नवंबर तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में हर उम्र के अफराद के लिए सकाफती रंग के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में मशहूर मुसव्विर फारूक शाहब के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। परिंदों के इंसान से ताल्लुक पर मबनी मुनफरिद नुमाइश में हाजरीन की दिलचस्पी नुमाया थी। रिपोर्ट करेंगी नम्रा सुहेल। कुदरत के निज़ाम में परिंदों की इंसान के लिए अहमियत को फारूक शाहब ने अपने कैनवस की मदद से रंगों में खूब ढाला। इस्लामाबाद की तंजारा आर्ट गैलरी में रखे गए फनपारों में इंसान और परिंदों के अनमिट ताल्लुक की अक्कासी की गई। मेन थीम है वो इंसान है, इसमें परिंदे और नेचर, जो कि तीनों एक दूसरे से लाजिम मलजूम है, एक साथ ही हम रहते हैं। आजकल जिस तरह से अर्बनाइजेशन और चीज़ें हो गई, जिस तरह से डिटैच हो गए, अलग अलग हो गए कि हम उसको अलग अलग खानों में रखते हैं, वो एक्चुअली एक साथ हैं। शहरियों ने फारूक शाहब के फनपारों को सराहते हुए उनके फनपारों को कुदरती मस्कन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही पैदा करने में अहम करार दिया। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि इनके वाइब्रेंट कलर्स हैं इतने ज़बरदस्त। इसके अंदर जो परिंदों का इन्होंने जिस तरह दिखाया है, इसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टर का जो इन्होंने एक अपना एक्सप्रेस किया है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आज सोच के आएंगे कि ये हम हैं, और ये एक बहुत बड़ी अमेजिंग फीलिंग होती है क्योंकि इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फारूक शाहब की एग्ज़िबिशन 10 साल के बाद इस्लामाबाद आई है एंड उनकी इस दफ़ा आप देख सकते हैं थीम बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स। परिंदे इंसानों के लिए खूबसूरती के साथ माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन का भी किरदार अदा करते हैं, जिसे मुसव्विर ने मुनफरिद अंदाज में अवाम तक पहुँचाया।
नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। तहम जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूं रही। लह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, कालाम और स्कर्दू में 0, शोपियां 3 जबकि श्रीनगर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं रही। इस्लामाबाद में 10, लाहौर 17, कराची 24, पेशावर 14 जबकि कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।